Who is going to tell me about it? And even in the last class, I remember we also completed the two topics under the brand development, right? In brand development, we discussed about the 2 topics, but the 3 is left. Today we are going to complete all those 3. So Priya, tell me, what is the importance of branding? Brand gives the identity. Identity helps in processing. Then consumer loyalty is increased by the brand. And that's all I remember. Okay, who is going to tell me next? What are the importance of branding? Yes, Piyush. Ma'am, brand gives identify to the product. Identify help in processing. Image gives competitive advantage. Positive image to your brand to give another product. Increase consumer loyalty. Okay. Okay. Anyone have any doubt in the importance of branding? Next topic, Priya, what we discussed in the last class? Good brand. Selection of selecting the name of the brand. And the merits of brand and important brand development. Okay. So who is going to tell me that what are the good brands? How we select the brand name? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Yes, Priya. Ma'am, it should be short logo. Logo must be clear, and it must give some messages also. And logo must not match with the another brand or logo, another company. And that's all. Okay. And it should be attractive also. Who is going to tell me that how we select the name? How we select the name of the any brand? नाम कैसे select कर सकते हैं किसी भी brand का? Yes, Ashutosh. Yes, ma'am. Brand names should be suggestive, easy to pronounce, extendable, having trademark and legal protection. Values, legal protection. Good. I guess last class में जो भी हुआ था, we already discussed. So today, and the one more thing, in last class we discussed about the brand development as well, right? So brand development में we discussed 2 topics. Who is going to tell me about it? Raise your hand. Who is going to tell me about the brand development? We discussed 2 topics in that. Like I just told you all about 5 topics, but we discussed only 2. Who is going to tell me about it? Raise your hand. Yes, Piyush. Ma'am, brand extension and line extension. Ma'am, brand extension means establish a successful new brand name to the new product. Line extension means involves introduction to the additional item. Who is going to elaborate it further? Who is going to elaborate it further? Raise your hand. With example, who is going to tell me? Piyush, you tried good, but who is going to elaborate me further? Because without example, we can't discuss it. Yes, Priya. Ma'am, brand extension means means. Ma'am, can I explain in Hindi? Yeah, you can. मैम ब्रांड एक्सटेंशन वो होता है जिसमें एक ब्रांड जो है वो सक्सेसफुली ये क्या कहते हैं एस्टैब्लिश्ड है और मैम उस ब्रांड एक्सटेंशन में हम लोग उसमें उस ब्रांड के थ्रू ही उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हैं जस्ट लाइक मैगी पॉपुलर है नूडल्स के लिए लेकिन उसमें अलग आते हैं जैसे मसाला सॉस तो वो मैगी के नाम पे ही पॉपुलर हो चुके हैं और लाइन एक्सटेंशन में मैम हम लोग बस सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं जस्ट लाइक कलर चेंज हो गया उनका या फिर उनका पैकेजिंग चेंज हो गया
या उनका फॉर्म चेंज हो गया है, बस। फॉर्म जैसे चेंज, मैम फॉर्म जस्ट लाइक चेंज, लिटिल बिट फॉर्म चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्ट टाइप चेंज नहीं होता। यानी कि अगर वो टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट ही रहेगा, अगर वो मसाला है तो मसाला ही रहेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? द प्रोडक्ट फॉर्म लिटिल बिट कैन बी चेंज, बट द प्रोडक्ट टाइप कांट बी चेंज। सो इन ब्रांड डेवलपमेंट, ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई एक सिंगल ब्रांड के नेम से जब हम दूसरी टाइप के प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं, तो उसका हम सेम ब्रांड नेम यूज कर लेंगे, ठीक है? तो दैट इज नोन एज ब्रांड एक्सटेंशन। यानी ब्रांड एक्सटेंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? फैल रहा है, ब्रांड एक्सटेंशन। एक ही ब्रांड का जो नाम है मैगी, उसको हम दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, देखिए जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए कि हमने टूथपेस्ट, जैसे मैंने उस एग्जांपल दिया, टूथपेस्ट बनाया, मान लो कोलगेट है मेरे पास। अब कोलगेट में ही मैंने कोई कोलगेट हर्बल लेकर आई, फिर कोलगेट हर्बल का कोलगेट सॉल्ट है। तो लाइक एक ही टाइप के प्रोडक्ट में जब हम थोड़ा सा फॉर्म, इंग्रेडिएंट चेंज करके, उसका प्रोडक्ट टाइप नहीं चेंज करेंगे, बस प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करेंगे, या तो हम उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, या तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, या तो फिर उसमें कुछ हम क्या बोलते हैं, उसकी पैकेजिंग चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम टोटल जो है वो फॉर्म को लिटिल बिट चेंज करते हैं, बट प्रोडक्ट टाइप शुड बी सेम। प्रोडक्ट टाइप जो होगा सेम होगा टूथपेस्ट। तो दैट इज नोन एज लाइन एक्सटेंशन, जहां पर हम बेसिकली प्रोडक्ट का लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। मैंने आप लोग को बहुत सारा लिखवाया था, आई गेस 5th था प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। उससे पहले आप लोग लिखे मल्टी ब्रांड। मल्टी ब्रांड, मल्टी ब्रांड का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि जहां पर एक ब्रांड से ज्यादा ब्रांड्स होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बहुत सारे लाइन, प्रोडक्ट लाइन में वर्क करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन में डील करता है। लाइक बिवरेजेस हो गया, फिर आपके बाथिंग सोप्स हो गए, वॉशिंग पाउडर्स हो गए, ठीक है, एफएमसीजी बिस्किट्स हो गए, ईटिंग वाले ईडेबल चीजें हो गए। तो दे आर बेसिकली डीलिंग इन द मल्टीपल प्रोडक्ट। हु? हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेम एज इट इज आईटीसी. But today I am going to give example of Hindustan Unilever to explain this topic, multi brand. जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए अगर मैं बाथिंग सोप का एग्जांपल लूं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपका लक्स भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की है, लेकिन ब्रांड अलग हो गया। इसका ब्रांड नेम या रिकॉग्निशन जो है हम लक्स से करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर से नहीं, लक्स से। उसी के नीचे एक और डव आ गया। तो इसमें एक ही बेसिकली प्रोडक्ट लाइन में जब हम अलग अलग ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको कहते हैं मल्टी ब्रांड। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाथिंग सोप के कैटेगरी में लक्स, दैट इज अ डिफरेंट सोप, डव, दैट इज अ डिफरेंट सोप, पियर्स, दैट इज अ डिफरेंट सोप। तो जहां एक ही प्रोडक्ट लाइन में हम अलग अलग बेसिकली ब्रांड को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जितने भी हैं इनकी सबकी कैटेगरी सेम है, सारे सोप हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रांड का नाम हमने अलग अलग यूज किया है, अलग अलग टाइप के लिए। अलग अलग टाइप मतलब कि अलग अलग क्वालिटी वाले सोप के लिए, कुछ मेडिसिन वाले सोप है, कुछ ब्यूटी सोप्स है, राइट। सो अलग अलग नीड को देखते हुए कंज्यूमर के, और अलग अलग कंज्यूमर की इनकम लेवल को देखते हुए हम एक ही टाइप के प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग ब्रांड को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे पियर्स क्या है, दैट इज एक्सपेंसिव सोप, राइट, बट लाइफ बॉय हो गया, डव, डव इज एक्सपेंसिव सोप, ठीक है, बट लक्स इज अ लिटिल बिट सस्ता है, चीपर है ना, चीप है। तो इन दैट केस जहां पर हम एक ही प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज नोन एज मल्टी ब्रांड। उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी ब्रांड। क्लियर हो गया? मल्टी ब्रांड क्या होता है? यहाँ पर हम एक ही प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग, रजत सिट प्रॉपर्ली, रजत सिट प्रॉपर्ली, ठीक है, एक ही, अब जहां पर हम ब्रांड में एक ही टाइप के कैटेगरी में अलग अलग ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली मल्टी ब्रांड्स। वहीं अगर मैं बात करूं लाइन एक्सटेंशन का, तो लाइन एक्सटेंशन में नाम जो है वो बदल नहीं रहा है, बस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। जैसे कोलगेट, कोलगेट हर्बल, कोलगेट सॉल्ट, है ना, तो यहाँ पर ब्रांड सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। और वहीं ब्रांड एक्सटेंशन में बात करें तो एक ही ब्रांड का नाम हम अलग अलग प्रोडक्ट टाइप में यूज करें, जैसे मैगी मसाला, मैगी सूप, तीनों में डिफरेंस समझ में आया? तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया?
नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। अब है न्यू ब्रांड। न्यू ब्रांड का मतलब क्या होता है कि इसमें, अच्छा लिख लीजिए पहले थोड़ा सा, मल्टी ब्रांड में लिखिए, मल्टी ब्रांड में लिखिए, कंपनीज लॉन्च additional brands, company launch additional brand in the same category, ठीक है, in the same category, ठीक है। आगे लिख सकते हैं मल्टी ब्रांडिंग, ये समझ में आ गया। कंपनी लॉन्च एडिशनल आइटम्स इन द सेम कैटेगरी, यानी कैटेगरी सेम है, बाथिंग सोप, ठीक है। समझ ना आए ना तो ऐसे एग्जाम्पल भी बगल में लिख सकते हो डेफिनेशन के बगल में, ठीक है। मल्टी ब्रांडिंग फैसिलिटीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन to establish different feature, to establish different features, attributes, and appeal to different buying motives. Companies launch additional brand in the same category. Multi-branding facilitates product differentiation, establish different features, attributes, and appeal to different buying motives. अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तानी यूनिलीवर में लक्स भी है और डव भी है, लेकिन उन दोनों का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखिएगा कि दोनों के एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज डिफरेंट है। लाइक लक्स इज अ ब्यूटी सोप, राइट, इट विल गोइंग टू एनहांस योर ब्यूटी, बट द डव इज अ मॉइस्चराइजिंग सोप। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट यहाँ पर जो कंज्यूमर का मोटिव होता है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने का, दैट इज डिफरेंट। हर एक कंज्यूमर के अलग अलग डिमांड होते हैं। अब एक सिंगल कंपनी अगर एक सिंगल प्रोडक्ट हर एक पर्टिकुलर पर्सन की नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, तो इसी के लिए सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में हम डिफरेंट ब्रांड को लेकर आते हैं, अलग अलग फीचर के साथ, अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ, राइट, और अलग अलग प्राइस के साथ, ताकि हर एक कंज्यूमर तक हम प्रोडक्ट को पहुंचा सके और जिसकी जैसी नीड हो वैसे ही प्रोडक्ट को परचेज कर सके। अब एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय इज नॉट अ ब्यूटी सोप बट दैट इज अ जर्म्स किल सोप, राइट। जर्म्स को किल मतलब मारने वाले सोप है ये, मतलब किल मतलब बोल सकते हैं जर्म्स प्रोटेक्शन के लिए सोप है। तो यहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं ना, एक ही मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के अंडर में ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर में ये अलग अलग ब्रांड्स हैं। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट मल्टी ब्रांड हो गया, नेक्स्ट लिखिए न्यू ब्रांड। अ न्यू ब्रांड, इसमें लिखिएगा, एक मिनट पहले न्यू ब्रांड समझ लीजिए। जब भी जैसे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे टाटा है, ठीक है, टाटा हो गया, फिर या फिर आपका कोई और कंपनी आप ले लीजिए जैसे होंडा हो गया, तो ये कंपनी जब भी कोई नई मॉडल निकालता है, कोई भी नया मॉडल निकालेगा या फिर कोई नया टाइप ऑफ बाइक निकालेगा, तो एक नया ब्रांड का नाम दे देता है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं न्यू ब्रांड। जब एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी बना के उसका नया प्रोडक्ट का नाम दिया जाए, लाइक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी एंड न्यू ब्रांड नेम, दैट इज बेसिकली न्यू ब्रांड। तो इसमें लिखिए अ न्यू ब्रांड इज क्रिएटेड, जैसे न्यू ब्रांड में लिखिए अ न्यू ब्रांड नेम इज क्रिएटेड, बाय अ कंपनी when it enters in a new product category, a new brand name
created by a company, a new brand name created by a company when it enter a new product category, when it enter a new product category, for which the present brand is not found suitable, for which the present brand name is not found suitable, ठीक है, not found suitable, ठीक है। ये न्यू ब्रांड का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अब कोई भी मान लीजिए कंपनी ले लेते हैं, एक मिनट, मान लीजिए कि यहाँ पर टाइटन है, टाइटन जो है ये किसका है, ये बेसिकली टाटा का, ठीक है। अब टाइटन जो है ना, ये ट्रेडिशनल अपने वॉच के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल वॉच वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है टाटा। अब जैसे ही इसने एक नया यूथ के लिए कोई इसको वॉच बनाना था, बिल्कुल यूथ के लिए स्पोर्ट्स टाइप वाले वॉच, तो इसने एक नया कैटेगरी जो बनाया स्पोर्ट्स वॉच का, उसी वॉच के लिए इसने नाम क्या दे दिया उसका, फास्ट ट्रैक। यानी कि जब कुछ नया कुछ इनोवेशन करके जब नया कोई प्रोडक्ट कैटेगरी बनता है तो उसके लिए कोई नया सुटेबल नाम की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो हम क्यों ऐसा करती है कंपनी, क्योंकि उसको लगता है जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है वो नए वाले ब्रांड के लिए सुटेबल नहीं है, या तो जो पुराना ब्रांड है उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो अब हम उसी ब्रांड का नाम दूसरे नए प्रोडक्ट के लिए क्यों यूज करें। अगर मान लीजिए टाइटन जो है, फास्ट ट्रैक की जगह टाइटन ही नाम रहता ना, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज होता कि ये स्पोर्ट्स वॉच अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि टाइटन इज फेमस फॉर द ट्रेडिशनल वॉच, गोल्डन एंड सिल्वर वाले वॉच के लिए दे आर फेमस। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली, सुटेबिलिटी को देखते हुए, जब कोई भी कंपनी जब कोई नया प्रोडक्ट कैटेगरी लेकर आती है, तो जब उसका बिल्कुल नया नाम रख देती है, बिल्कुल न्यू नेम रखती है, तो उसको हम कहते हैं न्यू ब्रांड। होंडा ने भी सेम चीज किया था, होंडा ने लग्जरी कार के लिए एक नया नाम रखा। आपने देखा होगा कार के भी अलग अलग नेम होते हैं जब नया नया मॉडल आता है। वही सेम चीज होंडा ने भी क्या किया, लेक्सस ब्रांड लेकर आया था वो लग्जरी कार के लिए, यानी उसका प्रोडक्ट कैटेगरी लग्जरी कार था टोटली, तो उसमें भी वो क्या लेकर आया, लेक्सस नाम का कार। तो उसने बिल्कुल अपने होंडा को यूज ही नहीं किया, बल्कि लेक्सस को क्या किया, एडवर्टाइज किया। तो यहाँ पर सेम वही चीज है कि जो जब कोई नया प्रोडक्ट कैटेगरी आता है और जब हम उसका नाम बिल्कुल नया रखते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं उसको, न्यू ब्रांड। अब टाटा का ही बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट में टाटा इज डीलिंग, राइट, टाटा इज डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे आर डीलिंग इन, उनके सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेक। अभिजीत, व्हाट यू आर डूइंग? अभिजीत क्या कर रहे हो बच्चे? कुछ नहीं मैम। ओके, चलिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज था कि जैसे कोई नया चीज आया, नया कुछ रिनोवेट करके आप लेकर आए, या कुछ नया इम्प्रूव करके ले आए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, नया कैटेगरी लेकर आए, और आप अपने पुराने ब्रांड का नाम यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम न्यू ब्रांड या नया रखते हैं। कहाँ पर थे हम, टाटा पे। तो जैसे तनिष्क जो है टाटा का ही ब्रांड है, लेकिन जब वो ज्वेलरी में जब दे स्टार्टेड डीलिंग, ठीक है, व्हेन दे स्टार्टेड डीलिंग इन ज्वेलरी, they didn't use the name Tata only, but they used the name Tanishq. Like so many people are even recognize that as a Tanishq, that particular outlet as a Tanishq, not as a Tata, right? So there is the thing, whenever you are basically dealing in the new product category, you just need to use the new name for that, right? Fast Track हो गया, Sonata is also a part of Titan, but that is also the part of traditional, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो होंगे वो न्यू ब्रांड के लिए होंगे। होंडा का लेक्सस जो लग्जरी कार है, नया बिल्कुल ब्रांड नेम लेकर आए वो, तो दिस इज द न्यू ब्रांड स्ट्रैटेजी। तो ये 4 तरीके की हम लोगों ने ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इज प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। प्रोडक्ट फ्लैंकिंग लिखवाया था प्रिया, चेकिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, एक लाइन इस पे लिखी है और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, और सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन रूरल एरियाज में होता है। इसको लिखिए पहले। प्रोडक्ट फ्लैंकिंग
Product flanking refers to the introduction. Product flanking is refers to the introduction of different combination. Product flanking refers to the introduction of different combination of product. Product flanking refers to the introduction of different combination of product, different combination of products at different prices, and package sizes to tap market opportunity, Product flanking refers to the introduction of different combination of products at different prices, and package sizes to tap market opportunities. नाम से ही मुझे लग रहा है बहुत लोगों को ये बात समझ आ गई होगी. समझ में आया किसी को कुछ? नाम से क्या पता लग रहा है इसके? सी, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट एक जैसा है, मान लीजिए कि व्हील है, ठीक है, मान लीजिए कि व्हील है. व्हील क्या है? मान लीजिए व्हील है, व्हील सर्फ है. अब व्हील सर्फ का 1 kg का भी पैकेट अवेलेबल है, 1 kg का पैकेट, 100 ग्राम का भी अवेलेबल मिल जाएगा, 500 ग्राम का भी मिल जाएगा. तो यहाँ पर ये डिफरेंट क्वांटिटीज जब हम एक ही सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? रीजन, यहाँ पर 1 kg वाला बहुत लोग फैमिली पैक लेता है, जिनकी बड़ी फैमिली होती है, जिसको बहुत छोटी फैमिली है या फिर सिंगल छोटी क्या मतलब बैचलर है, दे वांट टू परचेज 100 ग्राम. या फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉस्ट. और इसी चीज को देखते हुए रूरल एरियाज में प्रोडक्ट फ्लैंकिंग का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, जो मैंने आप लोग को पैकेजिंग में भी बताया था कि छोटे छोटे पैकेट्स वहां इजिली अवेलेबल होते हैं. तो वहां पर अवेलेबल होने के रीजन क्या है कि दे आर ऑन द डेली वेजेस. अब डेली वेजेस में वो डेली अर्न करते हैं, 100 रुपया 200 रुपये वो अर्न करेंगे, तो दे कैन नॉट एबल टू बाय द 1 kg पैकेट, राइट? तो मे बी दे आर गोइंग टू परचेज द 100 ग्राम वाला पैकेट. सो दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट फ्लैंकिंग का मतलब होता है जब हम एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग साइज में, अलग अलग पैकेट्स में अवेलेबल करवाते हैं कहाँ पर? मार्केट में. तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट फ्लैंकिंग. और डिफरेंट प्राइस पे, लाइक ये 1 kg मान लो 50 रुपए का, तो ये मान लो 100 ग्राम कितने का होगा? हार्डली 4 रुपए या 5 रुपए का, ठीक है. तो 500 ग्राम कितने का? हार्डली 25 या 30 रुपए का. समझ में आई बात? तो प्रोडक्ट इज डिफर एंड द पैकेजिंग एंड क्वांटिटी इज डिफर, ठीक है. तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, where we are not only providing goods in a single size and single weight, but we are providing the products in multiple weight, multiple price and multiple packaging, right? यानी यहाँ पर अलग अलग पैकेजिंग हो रहा है, 1 kg के लिए अलग, 500 ग्राम के लिए अलग, 100 ग्राम के लिए अलग. अब 1 kg के पैकेट में 100 ग्राम सर्फ तो नहीं होगा, 100 ग्राम के लिए अलग पैकेट्स होंगे, वेट अलग होगा, अलग प्राइस होगा. तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट फ्लैंकिंग. आई बात समझ में? प्रोडक्ट फ्लैंकिंग क्या होता है? ओके, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग सबको क्लियर हो गया? नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी ऑल द टाइप ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द ब्रांड स्ट्रैटेजी या ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज इन रूरल मार्केट. क्या क्या वहां पे स्ट्रैटेजी यूज होता है? कौन बताएगा मुझे? 5 तरीके डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पढ़ा है अभी. हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड. कौन बताएगा मुझे? एक्सटेंशन. हाँ, एक लाइन में एक्सप्लेन करना. Brand extension means extending established and success brand name to the new product. Or line extension means involves introduction to additional item in given product category and to same brand name, and such as new flavor. Ma'am, first is brand extension, in which in same brand different types of product is introduced with their different form, like example Maggi, or
second one is brand line extension. Line extension. In line extension, a new product is introduced with the same brand name, with the same brand, but there is a little bit change in the product, like their packaging, their color, or their form. A little bit their form they change. Example. Example, just like food, Bata. Bata is the company of brand of shoes, in which there are the official shoes, sports shoes, party wear shoes, casual shoes are there. Third one is multi-brand. Third one is multi-brand. In multi-brand, मल्टी ब्रांड का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे मल्टी ब्रांड? Who is going to tell me about the multi brand? Raise your hand. Yes, Ashutosh. Ma'am, in multi brand there is a common brand, that is HUL, and there are sub brand in this. That like in HUL there are Lux, Lifebuoy, Dove, that is all under the. मल्टी ब्रांड का मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट लाइन में जब कोई कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम यूज करती है प्रोडक्ट के लिए, जैसे लक्स अलग हो गया, डव अलग हो गया, राइट? नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द न्यू ब्रांड? न्यू ब्रांड कौन बताएगा मुझे? यस, आशुतोष. New brand, in new brand there are totally new product, that is that, for example, the Tata is making the Tata Motors for first time, and for they using the first name, that is all under the new brand. For example, Nexus, Honda company making the Nexus car is come under the new brand. And last one is in product flanking. In product flanking there are different types of product with different prices and different sizes. For example, and the Nestle company making the tea of different sizes, 1 kg, 500 kg, 500 gram, 100 gram, and their price is also different. So that's very good. तो सबको क्लियर हो गया प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, न्यू ब्रांड, मल्टी ब्रांड, लाइन एक्सटेंशन एंड ब्रांड एक्सटेंशन, राइट? सो नाउ on a screen you can able to see the two ways of the branding, right? That there is a two way of branding. Like यहाँ Tata Shakti, what is that? What they are dealing with? Tata Shakti क्या है? Ma'am, there is dealing in steel and all the steel, cement and exactly छड़ वगैरह जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. Yes, ma'am. तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है उसको बहुत अच्छे से देखिए आप क्या लिखा है. पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही दाम पर उपलब्ध, पश्चिमी यानी वेस्ट यूपी में टाटा शक्ति. एवरीथिंग इज रिटन इन हिंदी, ठीक है? यहाँ पर हिंदी में, और यहाँ पर वॉल को यूज किया गया है, जो हमने एडवर्टीजमेंट में भी पढ़ा था कि वहां पर वॉल एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर वो बेसिकली ब्रांडिंग, यहाँ एक स्ट्रैटेजी है. दूसरा देखिए कि यहाँ पर उन्होंने कोको कोला लिखा है, ठीक है? और साथ साथ में व्हाट दे मेड कि उन्होंने रूरल एरियाज को एक बार कन्वे किया है मैसेज, बिकॉज इन रूरल एरियाज यू आर एबल टू फाइंड सो मेनी हैंडपंप एंड द पीपल आर यूजिंग द वाटर, देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, राइट? एंड कोको कोला इज इनफ टू, मतलब कोको कोला ये शो कर रहा है कि वो प्यास बुझाने के लिए ठीक है, मतलब फॉर वाटर दे कैन वर्क एज अ अल्टरनेटिव. लाइक यहाँ पर वाटर को यूज किया जा रहा है एज अ कोको कोला का एज अ वाटर अल्टरनेटिव, एंड दे आर डिपिक्टिंग दिस photograph is depicting something that is a billboard, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर वाटर की रूरल एरियाज में कितनी ज्यादा स्कैर्सिटी है, यानी कमी है, ठीक है? So if you are thirsty, you are able, you don't need to go toward water, but you can able to drink Coca-Cola. So this message is depicting through this. So this is the way, this is the way for what? This is the way for basically advertisement, or we can say branding, not exactly advertisement, that is a branding. Branding strategy है वहां के लिए, कहाँ के लिए? बेसिकली रूरल एरियाज के लिए. अगर हम एग्जांपल लें और भी कि ब्रांडिंग मेथड्स वगैरह क्या होता है, वहां पर किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है ब्रांडिंग का रूरल एरियाज में, तो वहां पर बेसिकली ज्यादातर हिंदी शब्द या संस्कृत शब्द का यूटिलाइजेशन है. जैसे संपूर्णा, संपूर्णा इज अ टेलीविजन, अ काइंड ऑफ टेलीविजन
which is specially customized by LG TV. मैंने आप लोगों को बताया था LG के द्वारा, LG कंपनी के द्वारा एक टीवी बनाया गया था जो बिल्कुल कस्टमाइज था, जिसको हम संपूर्णा कहते हैं, ठीक है। तो संपूर्णा इज अ वर्ड दैट नोन एज होलसम, और संपूर्णा एक चीज और भी है कि संपूर्णा एक संस्कृत का वर्ड है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके के शब्दों का, वर्ड्स का यूटिलाइजेशन है। साथ साथ में जब यहाँ पर ब्रुक बॉन्ड आया, आपका टाटा ब्रुक बॉन्ड जो है वो टी मतलब एक चाय पत्ती जब आई, तो उसके साथ साथ कुछ शब्द वर्ड भी आए, जैसे कि सेहतमंद। जैसे यहाँ पर वर्ड क्या था, ब्रुक बॉन्ड सेहतमंद। Why this सेहतमंद is used here? Because in rural areas the people are believing that tea is, जो टी होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। So because of this ब्रुक बॉन्ड के साथ एक सेहतमंद शब्द को या वर्ड को यूज किया गया, ठीक है। साथ साथ में वहां पर आपके मतलब वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रांड का नाम याद नहीं रखते, कलर्स याद रखते। मैंने बताया था जैसे नाइल शैम्पू है, उसको नाइल याद नहीं रखते, दे लर्न इट लाइक अ ग्रीन, हरा वाला शैम्पू, ठीक है। एंड हरा जो है वो क्यों, वहां पर हरियाली और एग्रीकल्चरल एरिया रहता है, तो इनको जो ग्रीन कलर है दैट इज अट्रैक्टिव फॉर देम, इसलिए वाटिका, नाइल, ये सब का वहां पर सेल बहुत ज्यादा है, कहाँ पर, रूरल एरियाज में, ठीक है। कुछ ब्रांड है जिनका नाम मे भी उनको याद हो, जैसे कि निरमा वगैरह जो काफी पुराना ब्रांड है, उनको शायद नाम याद हो। अदरवाइज वो ज्यादातर ब्रांड का नाम रिकॉल किस तरीके से करते हैं, ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग और कलर के हिसाब से, विजुअल और न्यूमेरिक या नंबर कुछ लिखा है तो उसके हिसाब से, तो इस तरीके से उनका रिकॉग्निशन होता है ब्रांड का। इसीलिए कभी भी अगर कोई ब्रांडिंग करना हो तो दैट शुड बी इजी, नॉट कॉम्प्लेक्स, और बहुत ही लोकल लैंग्वेज में उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ थे रूरल मार्केट की बेसिकली सिचुएशन ब्रांडिंग के लिए। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे ब्रांडिंग के लिए जो यूटिलाइज हुआ था, जैसे कि जानदार सवारी, शानदार सवारी, ये सब वहां के बाइक के लिए यूज होता था, क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादातर कच्चा रोड्स रहते थे, कच्चा रोड है आज भी, और अब तो कम हो गए हैं खैर, बट कच्चा रोड ज्यादा थे। तो यहाँ पर स्कॉट्स जो है वो इस तरीके से इन्होंने बेसिकली यहाँ पर नाम रखा था, जानदार सवारी, शानदार सवारी। और एक चीज और था, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया था, प्रोजेक्ट शक्ति, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पर ITC ई चौपाल जो था वो भी अपने तरीके से उन्होंने भी ब्रांडिंग किया था, यानी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है। ऑपरेशन भारत, हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऑपरेशन भारत लेकर आया था, जहां पर उसने लो प्राइस के वही सैंपल वाले पैकेट्स, टूथपेस्ट, फेयरनेस क्रीम, क्लिनिक प्लस वगैरह इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारे बेसिकली ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी जो थे कहाँ पर थे, रूरल एरियाज में थे, ठीक है। रूरल एरियाज में अगर ब्रांडिंग करना है ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए, यानी कुछ लोगों तक उसके बारे में जानकारी दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए। बाकी जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है वहां बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कम होते हैं, स्कैटर्ड मार्केट होता है, लोग एक गांव में बहुत कम होते हैं, आपस में मिलना जुलना उनका होता है, ठीक है, कम्युनिटी वो डेवलप करके रखते हैं। तो इसीलिए वहां पर जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है बहुत ज्यादा है, यानी एक दूसरे को वो कन्वे करते हैं मैसेज, ठीक है। फिर वहां पर रूरल ब्रांडिंग के लिए आप और भी तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोकल मीडिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लोकल मीडिया वहां का जो है, या फिर वहां पर हार्ट्स वगैरह है, जैसे बोल सकते हैं मेला वगैरह है, फिल्म शोज वगैरह अगर है, या फिर स्ट्रीट शोज हो, ठीक है, रोड शोज हो, तो ये सब में आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। साथ साथ में रूरल इवेंट वगैरह जो होता है, ठीक है, जैसे मेला हो गया, थिएटर हो गया, ठीक है, जैसे रामायण का कई बार वहां पर वो लगता है थिएटर, फिर रामायण वहां पर वो भी होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, रामलीला वगैरह जो क्या बोलते हैं, ठीक है, जो ड्रामा वगैरह भी वहां बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, कंपनीज ब्रांडिंग का यूज करती है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी था। क्या बोल रहे हो रजत? नुक्कड़ नाटक में, नुक्कड़ नाटक, एग्जैक्टली, नुक्कड़ वगैरह, ड्रामा वगैरह वहां होता है, ठीक है। और ज्यादातर सांस्कृतिक चीजें वहां पर बहुत ज्यादा होती हैं, सांस्कृतिक चीजें यानी कि वहां पर हमेशा आप नोटिस करना, जैसे मेला वगैरह होगा, और या तो ये सब जो चीजें जो अर्बन एरियाज में बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, वो सब वहां पर बेसिकली होता है। You can see trade fair in urban areas, but you can't able to see like मेला and a proper fair like a village, ठीक है। तो वहां पर वहां पर बेसिकली ब्रांडिंग करना
कंपनी के लिए बेटर होता है, ठीक है। और ब्रांडिंग के लिए जैसे ऑपरेशन भारत आया, फिर प्रोजेक्ट शक्ति आया, तो ये सारी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज ही है काइंड ऑफ। प्रोजेक्ट शक्ति, ऑपरेशन भारत, फिर जो स्टेटमेंट्स यूज किया जाता है, जैसे मैंने बोला ना, जो एक वर्ड यूज किया था मैंने बाइक के लिए, ठीक है, फिर वहां पर सेहतमंद ब्रुकबॉन्ड, तो ये वर्ड इसलिए यूज किया जाता है संपूर्ण, ताकि जो लोग है लोकल, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर अस, ये हमारे लिए फायदेमंद प्रोडक्ट है। तो इसीलिए बेसिकली वहां पर इस तरीके से ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? समझ में आया? ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी इन रूरल एरिया, सो यू कैन राइट 2-3 वर्ड्स, लाइक वहां पर अगर आपको मैसेजेस देना है, मैसेज के थ्रू आप भेज सकते हैं मैसेज, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज मतलब ऐसा होना चाहिए जिसका प्रॉपर मीनिंग हो, कंज्यूमर, जो रूरल कंज्यूमर्स है उनके सोच और उनके जो बेसिकली बोल सकते हैं कल्चर के साथ मैच हो, वैसा मैसेज आप भेजिए प्रोडक्ट्स के बारे में। मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सेहतमंद वर्ड था ना, दैट इज अ काइंड ऑफ मैसेज, राइट, ठीक है। तो वर्ड्स ऑफ माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, यानी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का मतलब होता है एक लोग जब दूसरे लोगों को मैसेज पहुंचाते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ वहां पर ये भी यूज होता है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है रूरल मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल ब्रांडिंग। रूरल ब्रांडिंग में आप क्या यूज कर सकते हैं, वही स्ट्रीट शो, फिल्म शोज, हार्ट, HAATS, हार्ट। रूरल इवेंट में आप कर सकते हैं ब्रांडिंग। रूरल इवेंट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे रोड शोज, मेला, स्ट्रीट थिएटर, ठीक है। तो ये सारे तरीके से आप रूरल ब्रांडिंग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस की तरफ, लिख लिया सबने? हैंड रेज करना है, एक एक करके बताना है, ठीक है। Question 1. DAS is the process of creating distribution chains of goods and services in the rural areas for the customers in the rural areas. ठीक है, and trying the sales promotion and meeting the needs of people there. What can be urban marketing, semi-urban, rural marketing or marketing? Raise your hand. Yes, Ashutosh, what will be the answer? Ma'am, C, rural marketing. Priya, what will be the answer? Ma'am, marketing. Next. Anyone else? Piyush, yes. Ma'am, urban marketing. Next, Rajat. मैम डी होगा, मार्केटिंग। Next, anyone else? Yes, Rajvi. Ma'am, rural marketing. Anyone else who want to give answer of this? Yes, Rohit. अर्बन मार्केटिंग है, हाँ, अर्बन मार्केटिंग ऑप्शन नहीं। Akash. रूरल मार्केटिंग में। Anyone else who want to give answer of this? The dash is the process of creating and distribution chain of goods and services in the rural areas. Why you all are not able to see this word, rural areas? For the customers in rural areas, जहां पर rural areas के customers भी हैं, rural areas के आपके goods and services भी provide किया जा रहा है, sales promotion भी किया जा रहा है ताकि लोगों को सब मिल सके चीजें। Obviously answer will be rural marketing. यहाँ पर मार्केटिंग की बात तब होती जब यहाँ कोई वर्ड यूज नहीं होता, जैसे यहाँ रूरल नहीं होता। इन दैट केस अल्टीमेटली दैट विल बी मार्केटिंग, ठीक है। अर्बन मार्केटिंग जहां पर हम सिर्फ अर्बन पे फोकस करते हैं। सेमी अर्बन इज समथिंग दैट इज नोन एज टाउन डिस्ट्रिक्ट, ना यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना यहाँ अर्बन का नाम है, यहाँ सिर्फ नाम है रूरल मार्केटिंग का। तो यहाँ रूरल मार्केट की बात हो रही है, रूरल एरियाज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी रूरल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज कीजिएगा हैंड। A feature of rural marketing is the large and dash market. What will be the answer? Yes, Rajvi. Ma'am, scattered market. Rohit, मैम ऑप्शन डी स्कैटर्ड मार्केट। Priya, Ma'am, scattered market. Ashutosh, D, ma'am, scattered market. Rajat, मैम डी स्कैटर्ड मार्केट। Piyush,
Ma'am, D scattered market. Okay. So the answer is obviously scattered because यहाँ पर yes आकाश A scattered market, ma'am. एग्जैक्टली स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, जो एक जगह पे नहीं है वो बिल्कुल क्या है, अलग अलग जगह पे स्प्रेड है, ठीक है, तो स्कैटर्ड है। तो यहाँ पर जो रूरल मार्केट है वो डेफिनेटली स्कैटर्ड है, अट्रैक्टिव नीट और लिमिटेड नहीं, स्कैटर्ड है, यानी बटा हुआ है अलग अलग जगह पे, बिल्कुल इन हिंदी वर्ड वी आर यूजिंग छितराया हुआ है, लाइक है ना, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ऐसे वर्ड। तो दिस इज द बेसिकली इसका मतलब हो गया स्कैटर्ड, एक जगह पे जो समटा हुआ नहीं है या सीमित नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल अलग अलग जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रूरल मार्केटिंग डिपेंड्स मेनली ऑन द डैश एरियाज। यस आकाश, आकाश, Semi urban area. आकाश हो गया, पीयूष, Ma'am, rural area. प्रिया, मैम रूरल एरिया। रजत, Ma'am, ruler. A. राजवी, Ma'am, rural area. okay, anyone else? Yes, the answer is rural areas। मतलब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, उसमें भी गलत अगर हो जाता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये चीज। रूरल मार्केटिंग लीड्स टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू डैश एरियाज, व्हाट विल बी द आंसर? आकाश, राजवी, Ma'am, rural. पीयूष, Ma'am, rural. प्रिया, मैम रूरल एरिया। रजत, Ma'am, A. Ruler area. anyone else? Yes, Rohit. Ma'am, rural area. Rural marketing leads to direct agricultural production to urban areas। यहाँ डायरेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट कहा जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ तक पहुंचाता है, वो डायरेक्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। रूरल एरियाज में तो मिलेगा ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो होगा, डायरेक्ट कर रहा है, मतलब वो भेज रहा है कहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। Communication in the rural marketing creates dash barriers. What will be the answer? अच्छे से पढ़ के बताना। Yes, Piyush. Ma'am, C. Anyone else who is going to tell me the answer? Raise your hand. Yes, Rajat. Ma'am, B होगा. Next. Anyone else? The answer is B. Communication जो barrier है, basically कम्युनिकेशन जो है रूरल मार्केटिंग में लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज का बैरियर क्रिएट करता है, मनी का बैरियर नहीं, लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी कि जो बोलने में समझने में जो दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल पॉपुलेशन मूविंग टुवर्ड्स अर्बन मार्केट फॉर, व्हाट विल बी द आंसर? एक मिनट। Yes, who is going to tell me? Yes, Rajat. Ma'am, all of the above. D. Rohit. All of the above. Priya. मैम लास्ट, ऑल द अबव। Yes. Utsav. Ma'am, D. Rajvi. Ma'am, all the above. Okay. I guess सबने बोल दिया है. Yes, the answer is all the above. 7th, dash development in agriculture results in overall development of rural. Dash developments in agriculture result in overall development of rural. What will be the answer? Raise your hand. Yes, Rajat. Ma'am, B होगा. B. Yes, ma'am. Utsav. Ma'am, C. No, ma'am, D. D.
एक मिनट, बी होगा, बी होगा। पीयूष, मैम बी होगा सोशल। मैम मेरे हिसाब से ए होगा, चेंज करना चाहिए। कौन बोल रहा है ए होगा? मैम हम पीयूष। 22 रजत, नहीं रजत मैम ओके, चेंज कर। पीयूष। मैम सोशल बी। प्रिया, मैम आई थिंक डी, स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट आकाश। मैम स्ट्रक्चर होगा। द आंसर इज टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर को ओवरऑल डेवलपमेंट दिया है कहाँ पर? रूरल एरियाज में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन। और आज भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी में आपका कम्युनिकेशन और फिर आपका जो वो क्या आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ इसमें ही आएगा टेक्नोलॉजिकल में। नेक्स्ट, कम से कम कॉमन सेंस ही यूज करके आंसर बोला करो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, NABARD was established in 1982 by an act of parliament. True या false? Who is going to tell me? Raise your hand. Yes, Ashutosh. True, ma'am. Anyone else who is going to tell me about it? Answer. Yes, Piyush. मैम ट्रू। Akash. ट्रू। Utsav. मैम ट्रू। Rohit. True, ma'am. Rajat. ट्रू मैम। Very good. The answer is true. And NABARD का full form कौन बताएगा मुझे? Raise your hand. Yes, Ashutosh. National Bank for Agriculture and Rural Development. Utsav. National Bank for Agricultural and Rural Development. Okay. ठीक है. Next question. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना is self-employment program for rural poor started in 1990. True or false? Who is going to tell me? Yes, Ashutosh. Yes, Ashutosh. Yes, Utsav. Ma'am, false. Answer is true. That comes in 1999. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है. Next, agriculture produce needs to be marketed quickly as it is durable, perishable, can be stored, good shelf life. Who is going to tell me? Raise your hand. Yes, Piyush. मैम ड्यूरेबल। Next, Utsav. Ma'am, perishable. Anyone else? Yes, Rajat. मैम 2 होगा पेरिशेबल। The answer is Akash. Yes. मैम सेकंड। Yes. The answer is perishable. Perishable का मतलब होता है जिसको ज्यादा दिन तक स्टोर ना किया जा सके. ठीक है. सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको तुरंत मार्केट में सेल कर देना चाहिए क्योंकि वो पेरिशेबल होता है यानी खराब हो सकता है. ठीक है. लेकिन कुछ चीजों को स्टोर भी किया जाता है जैसे कुछ ग्रेन्स हो गए, कुछ आपके कोर्स ग्रेन्स होते हैं, उन सबको स्टोर भी किया जाता है. लेकिन ज्यादातर जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, तुरंत से मार्केट कर देना चाहिए क्योंकि वो खाने पीने की चीज स्पॉइल हो जाती है. सो दैट इज पेरिशेबल, दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड. That cannot be stored. ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत दिन तक चले, जैसे टेलीविजन हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सारी चीज ड्यूरेबल होती है. ठीक है. तो वर्ड्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो सी यू ऑल ऑन इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सी यू.